So I'm Professor Arun Kumar. I teach economics in JNU, and I was the president of the Teachers Association last year. And we had set up a coordination committee of Association of Teachers of Delhi. So all the teachers associations of Delhi universities are now together under the CCTAD, and we've issued a statement yesterday appealing to all teachers to cooperate in providing material, financial material and so on. And we also appeal to the authorities of the universities and colleges to try and collect funds on behalf of the relief agencies. But most likely the authorities will only donate to the Prime Minister's Relief Fund because that's how they work. But we thought it's important to work in a decentralized way, and therefore we've appealed to all the teachers associations to establish contact with the teachers associations in Nepal, in the various universities and colleges, and try and see what do they need so that we can work in a decentralized way and material doesn't reach only in one place, or it may get delayed, it may not reach urgently. So we do need to establish contact, and we've appealed, and we've also sent out a few hundred mails to other academics in other parts of the country that they should also try and establish this contact with colleges and associations there so that they can then directly provide relief. But we do need addresses of associations which are working already so that initially we can send them, and after a while when we establish contact with the college and teachers associations of the Nepalese people, then we can send them directly. That was what was our immediate concern, but we'd also organized after the Bhuj incident a major seminar in JNU to see what earthquakes are and what do they mean and how does society respond to it. And there we found that long-term steps are needed. So we have also suggested in our note what long-term steps are needed in terms of housing rights, because it's the collapse of houses that is the major reason why people get affected. So we are also propagating along with our appeal that housing rights should be recognized, and that would have a very strong social component. So that was basically what we have already initiated, and I came here to see which are the associations or organizations in Nepal which are already doing this kind of relief work, and if we get their addresses, then we can send it to the various teachers associations of Delhi and other parts. We also are members of the FedCuta, which is the Federation of Central Universities of all Indian universities. So we are sending appeal to them also, and they will also be doing that. So this way we can approach maybe a few 100,000 teachers and academics in the country and try and mobilize them to contribute immediately. So any lists that are there, any contacts that we can have, we'll circulate them immediately, and that could be useful. But if we can contribute to the embassy or to other NGOs working in the field in Nepal, then that list also if we have, that'd be very useful. Thank you very much. इसको जोड़ते मैं आपको मेरी अभी बात हुई है सुशीला आर्ट एकेडमी वाले वहाँ कर रहे हैं वीपी कोइराला जी. Actually, if I could just प्रदीप जी को जाना है, could he just finish? मैं बात करूँ क्या? मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करती हूँ. तो सुशीला एकेडमी के नाम से कर रहे हैं. ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सुशीला जी जो थी बीपी कोइराला की पत्नी के नाम से कर रहे हैं. सुशीला आर्ट एकेडमी जो सुषमा ने वहाँ शुरू की है, प्रकाश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, प्रकाश कोइराला, वो कर रही हैं वहाँ पे काम. और एड्रेस है जनमार्ग महाराजगंज. ये मैं हम लोगों को दे दीजिएगा. हाँ, और मुझे टेलीफोन नंबर वगैरह है. उनकी ज़रूरत ये है कि टेंट है, ब्लैंकेट है, और उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता तो आप हमारे यहाँ कुछ वो फोम जो मिलते हैं ना, रॉ फोम जो होते हैं, वो भी हमें मदद करेंगे. ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड में उसमें खास तौर से 2-3 चीज़ें कहा कि बेसिकली प्लीज़ राइस ईटर, तो चावल हमको चाहिए, और मक्का जो होता है वो किसी भी फॉर्म में, वेदर इट्स ग्राउंडेड या पिसा हो या कैसा भी हो, वो चाहिए. ये 2 चीज़ें चाहिए जो एकदम स्टेपल डाइट जो होती है उसको इट कैन फुलफिल उसके तरह से वो हो सकती है. उसके ये सब बहुत सी चीज़ें बनाते हैं. तो अभी उसने यही मुझे कहा है. तो अभी वो गांव में कहीं पर थी, उससे बात कर रही थी. तो ये है कि ये तो है, और इसके साथ इनकी बहू इसमें काम कर रही है सुशीला आर्ट एकेडमी के नाम पे.
उन्होंने कहा इस पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा, और 2-3 एजेंसी जिनसे अभी मेरी बात हो रही है मैं आपको बता देती हूँ सबके नाम। मुझे ईमेल अगर आ जाएगा तो हम वो भी भेज देती हैं। I think what we can do is maybe we can just share ये जो email list बनाएंगे उस पे ये सारा शेयर करेंगे तो सबको ये मैं आपको अभी दे देती हूँ information मिल जाएगी. If I could just now ask Mr. Pradip Giri, who is a senior socialist thinker and CA member, to share his thoughts with us. मैं अभी रामबरन जी या रामबरन जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हो रही है, मैं अभी आपसे बात करके बताऊँ. ठीक है, सो After this we can just. विजय प्रताप जी और मित्रों, विजय प्रताप जी ने कल मुझे फोन करके कहा करे कि सभा हम कर रहे हैं, आपको आ जाना है. जिस दिन हादसा हुआ मैं काठमांडू में दिल्ली में था, कुछ दिनों पहले से था, और इसके बाद जाहिर है कि हमें भी काठमांडू जाने की जल्दबाजी थी, हो गई. लेकिन एक विजय प्रताप जी ने कहा, वहाँ की मेरे मित्रों ने भी नेपाल में कहा कि एक रुक करके तो वो से मिल के आइएगा. विजय जी से इजाजत लिया, मैं कल जाना चाहता हूँ. वहाँ जो प्रत्यक्ष बात करने में लोगों से पता चलता है कि अखबारों और अखबार कम कहिए टीवी वगैरह जो पता चल रहा है उसे भी कहीं गंभीर वहाँ समस्याएं हैं. एक आंकड़ों से जो पता चलता है कि इतने घर गिर गए, यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, वो आंकड़े अपनी जगह पर है. लेकिन वहाँ की घर की जो बनावट है प्रॉपर काठमांडू की, घर की संख्या से नहीं पता चलता है, क्योंकि वहाँ मकान वाले और मकान में रहने वाले किराएदारों की संख्यात्मक दृष्टिकोण से तुलना ही नहीं. एक एक घर में अत्यंत अस्वस्थ वातावरण में कम से कम 50 लोग रहा करते थे. लेबर क्लास तो आप जानते हैं कि कमरे बड़ा बड़ा, जैसा उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष भेंट घाट में कहा, पूरा भारत है. और खुद मेरे परिचित, बल्कि मेरे रिश्तेदार, उन लोगों के घर ध्वस्त हो गए, अपने परिचित नहीं, भाइयों के घर हो गए. और वो ऐसे घर है जो हाउसिंग वालों ने बनाया था, अभी जो प्रोफेसर अरुण जी ने बताया, बल्कि दिखने में थोड़ा सुंदर न भी हो, अगर पुराना लोगों ने अपना घर बनाया है वो अपेक्षाकृत सेफ है. ऐसे घर जो हाउसिंग वालों ने बनाया वो ज्यादा गिरे हैं, और जिनको बाहर से देखने पर लगता था कि ये शायद न गिरे, बाद में उतनी आसानी से गिरे. एक आपको जानकारी मैं ऐड कर रहा हूँ. तो अभी जो मुझे लगा कि रिलीफ का मामला है कि तुरंत रिलीफ कैसे किया जाए, और रिलीफ का जो तजुर्बा आप लोगों का है और बाकी लोगों का भी है, वो रिलीफ में भी होता ही है कि जब तक आदमी के अंदर इंसानियत न हो, आदमियत न हो, चाहे रिलीफ हो, चाहे निर्माण हो, चाहे विकास हो, चाहे स्वास्थ्य कार्य हो, घबरा तो होता ही है. ये शायद मनुष्य के स्वभाव में ही है, घबरा करते हैं. इसको इशू नहीं बनना चाहिए, रिलीफ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा. जैसे आप ह्यूमैनिटी के आधार पर रिलीफ पहुंचाने को प्रतिबद्ध हैं, वो जिसके हाथ में नेक्स्ट पहुंचेगा, और उसमें इंसानियत होगी, मोहब्बत होगी, तो पहुंचाएगा. और शायद आपके देने भर से नहीं, कुछ अपनी ओर से भी पहुंचाएगा, ऐसा मान के चलाया जाए. ये बहस की रिलीफ पता नहीं कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, इसको बहुत ज्यादा चर्चा में कम से कम इस स्टेज में नहीं लाया जाए जिस स्टेज पर लोग हैं. ये तो बाद में कुछ समस्या हल हो जाएगा, क्योंकि बहुत को भी फिर बहाना मिल जाएगा, कहने का रिलीफ देके क्या होगा, प्रॉपर जगह पर नहीं जा रहा है. नॉर्मली हम लोग की आदत हो गई है सनसनीखेज चीजों को और खराब चीजों को ज्यादा उछालते हैं. जो पहुंचा उसको हम बहुत बात नहीं करते. पहुंच गया इतने लोगों ने खाया नहीं करते हैं, नहीं पहुंचा इतने लोगों ने बीच में खा लिया करते हैं. ये हमको वहाँ का हालात लग रहा है. रिलीफ की जरूरत है, और रिलीफ के साथ साथ जिस ओर मैंने इशारा किया कि मुझे तो नहीं लग रहा था इतनी ज्यादा गुडविल, इतना ज्यादा जो कहते हैं कि संवेदना, एम्पैथी, पर दुख कातरता, मन दूसरे को दर्द को देखकर आदमी हिले, ये बाकी है हमको नहीं लग रहा था. लेकिन नेपाल के इस हादसे ने जो मैंने यहाँ देखा और विश्वव्यापी देख रहा हूँ, उससे मैं तो मुझे एक बार फिर एक सच कहिए तो मानवता पर विश्वास हो गया है. दूसरे फिरे होते हैं जो हरदम इसी में लगे रहते हैं, जैसे हमारे भाई विजय प्रताप हैं, तो उनका लगना अपने आप में बड़ी बात नहीं, लेकिन आम लोगों के बीच में भी
जो देखा मैंने एक तरह का कमिटमेंट, इससे बड़ा खुश हुआ हूँ। आप लोगों का प्रेम मोहब्बत और इस संदेश में जाके काठमांडू अपने भी जरूर कहूँगा, और कहूँगा कि बहुत घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा जरूरत, जितनी फूड की ज़रूरत है, जितनी वाटर की ज़रूरत है, जितनी कंबल की ज़रूरत है, उसे शायद कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है। एक चीज़ आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, इतने बड़े हादसे में जितना रोना धोना होना चाहिए, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि नेपाल के लोगों ने रोना धोना कम किया है और मोहब्बत से, हिम्मत से लड़ रहे हैं। तो आप लोग प्रार्थना करें कि हमारी हिम्मत बनी रहे। और अभी एक बार फिर आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, विजय प्रताप जी को धन्यवाद देते हुए, मैंने परसेप्शन कहा कि वहाँ के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। आपने टीवी में देखा होगा, खासतौर से कहना तो मुझे नहीं चाहिए, जो ठेठ नेपाली है वहाँ के, वो चिल्ला उल्ला नहीं रहे, रोगा नहीं रहे, रोने वाले बारे लोग हैं। तो ये जो है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा हौसला बुलंद रखें, हमारा आत्मविश्वास बनाए रखें और पूरी दुनिया में मानवता है। ज़्यादा मैं भी कहने की अवस्था में हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के बीच में हूँ, जो मेरी जानकारी है। और ये सवाल जो प्रोफेसर अरुण जी ने उठाया, हाउसिंग का राइट और घर बनाने का जो तंत्र है, जो पूंजीवाद की चरण है, बेतहाशा चल पड़ा है, पूंजी घर और घर पूंजी बनाना, ये सब, और उसके लिए जो लालच है मिडिल क्लास में, कैसा भी बन जाए घर बन जाए, इसको भी बहस में कहीं न कहीं आना चाहिए। दीर्घकालीन दृष्टि से, अल्पकालीन दृष्टिकोण से तो ह्यूमैनिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, जम के हो, उस पर कोई आलोचना ना हो, अधिक से अधिक आत्म आलोचना हो। दूसरी बात, ये जो सबको मालूम है, अभी दोहराना ठीक नहीं इस समय में, कि भूकंप बहुत कहर नहीं जाती है, लोग खुद अपने पर कहर आमंत्रित करते हैं। रहने का तरीका, बैठने का तरीका, घर बनाने का तरीका, काठमांडू इसका निकृष्ट उदाहरण था, पंजीकृत उदाहरण है, उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहूंगा। इस पर भी बहस हो एक अगले में आप लोगों से, आप लोगों को फिर धन्यवाद देता हूँ और फिर मैं 2-4 मिनट में निकल जाऊंगा, ऐसी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये हमने बात तो कर ली कि मतलब दूर दराज के ये मतलब इलाके में है, बट कुछ कम्युनिटीज है जो और ज्यादा पीड़ित है। फॉर इंस्टेंस सेक्स वर्कर्स जो है या ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी जो है, उनके साथ काफी तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। मतलब औरतों के बारे में तो यहाँ बात होगी, तो ये भी ध्यान रखना है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो भी ना हो, क्योंकि एक होलिस्टिक वो करना है। थैंक यू। इसमें मैं बस इससे पहले क्या कहें कि जब गीता ने जागोरी से भी ये बात रेज की थी, सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म इन अ नेटवर्क एंड आई थिंक इट्स एसेंशियल टू कनेक्ट विद each other and ensure, you know, and I'm sure Sangat and Jagori and Pusar and Safa and Sama and all the organizations have lots of friends and colleagues and comrades on the ground in Nepal. If you can connect with them and ensure that the marginalized groups are also getting it, or getting it equitably. If they are not getting access to medical care, because I know the trans people's issue has been raised about their access to medical care. I think this is something that your networks in Nepal need to be activated to ensure that, I mean, this is something that we can continue to share on our lists and sensitize each other about this, but also to ensure that you're connecting with each other as well as to the networks, existing networks in Nepal, so that absolutely this question about equitable access to healthcare and to the aid that is going there is also put on the forefront. Yeah, you want to say something? अभी खाली 1 घंटा बचा है, तो इन्होंने सुझाव दिया था अगर हम ग्रुप्स बना के करना क्या है, उस पे अगर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। Just 1 second, if we can just take a couple names. I think Sanjeev is going to speak next, and then you wanted to, and then Gurinder wants to speak. Okay, so Sanjeev and Gurinder.